چیز سٲنِس ڈپارٹمنٹس سۭتۍ رِلیٹڈ چھِ تتہِ گوٚو یہِ تہِ گورمنٹس سۭتۍ اکھ چیٖز فٲصلہٕ ڈپارٹمنٹ تتہِ گوٚو چیف آرگنایزر چھِ نوٗر صٲب اَسہِ بیٚیہِ کران ییٚتہِ تہٕ دِن مشورٕ سٲنۍ دوس تتہِ نیوٗ پریزیڈنٹ صٲب گٔے پانہٕ وایس پریزیڈنٹ صٲب گٔے تتہِ چیف آرگنایزر تہٕ بہٕ تہِ چھُس یِمن سۭتۍ مےٚ چھےٚ ڈسٹرکٹ سرینگرٕچ ذمہٕ وٲری ڈسٹرکٹ سرینگرس منٛز ووٚن مےٚ گۄڈٕنیتھٕے یِمن زن ٹرمائل گئی کہ ہڑتال گو کرفیو گو یا فار فلانگ ایریا من اس ونس وچان یہ پھول گنڈت پتہ تہ عوامس پن سہولیات میسر سپدان نیشنل اخبارن درو اس 130 اخبارن درو گورمنٹن کور اس ایگریمنٹ کہ تہد محکمہ ہسا کرو ری آرگنائز تہندس محکمس من مسلے اسسٹنٹ سٹور کیپرن تم ہسا کرو سٹور کیپر یم ہسا سٹور کیپر تم ہسا دمو پنہ وقت مطابق کہ اگر تھی لڑان تھی تکلیف واتہ عذاب گھِ سہ تمہ چیز کھت بہتر اس سہ بزدل آئی سان بیٚیہِ انسان پتہ دپے ول مے مٲلِتھ کڑن ایف سی آئی وول چپا تہ وولن ایف سی آئی وول مے مسلہٕ تہ نین میون کار تہ ونے بیہم أمِس بِہِتھ کُرسی پٮ۪ٹھ ہے کرو یار ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران مگر بہٕ کرے نہٕ ژےٚ کِہیٖنۍ سرکار یُس پٔتِم سرکار ٲس سُہ گِرے شاپ ڈیلرن ہٕنٛز کتھ تمہِ آیہِ کٔرٕن سانٮ۪ن لیبرن ہٕنٛز کتھ کہ اسہِ باسیو اور محکمہٕ کٮ۪ن مُلٲزِم حمید صاحب فیاض صاحب تِہُنٛد ووٚن مےٚ گۄڈے میرے ہم سفر ساتھیو السلام علیکم وقت آنے دے اے دنیا وقت آنے دے اے دنیا ہم دکھائیں گے تجھے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں میانہِ طرفہٕ سارنٕے دوستن یا میٹنگ منٛز یِنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سارنٕے برونٛٹھ تِمو کِنہِ تقریٖبن 2-3 ہتھ گاڑِ تُمہٕ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا والیو تتھ گوٚو سی بی آئی کیس سنگرٲمِس منٛز گوٚو واقعہ واریاہن جاین گوٚو واقعہ یُس تِمو ژوٗر کٔر تِمن گٔے کینٛہہ گاڑِ مِسِنگ اور تتھ مِسِنگ ہٕنٛدِس آرڈرس منٛز کوٚر تِمو اکھ آرڈر پاس ہے اسہِ ہسا چھِ اگر أسۍ ڈایریکٹ اِشوٗ چھِ یِمن دِوان فوڈ سپلایز ڈپارٹمنٹ والٮ۪ن اسہِ ہسا چھِ کینٛہہ گاڑِ مِسِنگ گٔمٕژ بہرحال تُہنٛز تنظیٖم چھنہٕ شیٚنگِتھ کینٛہہ تُہنٛدۍ لیڈر چھِنہٕ شیٚنگِتھ کینٛہہ اسہِ کٔر سرکارس سۭتۍ کتھ اکھ اسہِ لیٚچھ سرکارس چِٹھۍ اکھ یُس ؤنکیٚس رواں دواں چھِ تٔتھۍ چِٹھِ پٮ۪ٹھ چھِ سٲرٕے کٲم چلان اسہِ لوٚگ ڈِوجنل کٔمِشنرس ہے تُہۍ کٔرِو سا اتھ تحقیٖقات اگر اتھ ژوٗرِ منٛز فوڈ سپلایزُک کانٛہہ مُلٲزِم سۭتۍ آسہِ ہم گُنہگار ہے ہمیں پھانسی پہ چڑھا یہ نسا چھُنہٕ اَسہِ کانٛڈٕے کوٚرمُت جو گناہ ہم نے کیا ہے ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے اور اتھ سا کرو أسۍ ٲخری حدس تام کرو أسۍ اتھ مقابل اور یہِ دِمو نہٕ کرنہٕ کینٛہہ سُہ چھُ خراب توٚمُل آسان سُہ چھِ یِم کران یِم چھِ والان پننٮ۪ن گوڈاونن منٛز پتہٕ چھُ سُہ واتناوان غریٖب لُکن بہٕ چھُسو تۄہہِ سارنٕے پننہِ طرفہٕ ونان ہے میانیو دوستو میانیو بایو فیاض صٲبا ژٕ چھُ اکھ پنٕنۍ شُرۍ خوٗنہٕ سۭتۍ رچھان حمید صٲبا ژٕ چھُ اکھ پنٕنۍ شُرۍ خوٗنہٕ سۭتۍ رچھان گلزار صٲبا ژٕ چھُ اکھ پنٕنۍ شُرۍ خوٗنہٕ سۭتۍ رچھان کیٛاہ تٔمِس غریٖب یُس غریٖب موٚزوٗر سُہ موٚنڈ مسکیٖن سُہ غریٖب سون بوے سُہ موٚزوٗر سون بوے یُس دۄہس خوٗن چھُ پانس کڑان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گاٹھس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان توٚمُل نِنہِ کیٛاہ ٲسۍ دِوان تس ملاوٹہٕ دار توٚمُل ٲسۍ دِوان تِہنٛدٮ۪ن بچن ملاوٹہٕ دار توٚمُل جانا چاہیے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پرسوں کی ایک بات ہے یہاں 5-8 ٹی ایس کا آرڈر ہوتا ہے سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ او پی جی تسلیم ہونی نہیں چاہیے جب ٹریڈ نہیں مل رہا ہے ہمیں کچھ چاہیے کس لیے جب اس کو پیسہ نہیں مل رہا ہے تو وہ کس لیے جا رہا ہے وہاں پہ اگر وہ جا رہا ہے تو پھر ہمارا دشمن ہے وہ صاف بات ہے یہ واضح کرتا ہوں میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ واضح کرتا ہوں اگر مجھے بھی مل جاتا ہے مجھے نہیں جانا چاہیے یہ تو مجھے اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھنا چاہیے اپنی قائد سے پوچھنا چاہیے کنیکٹ ہوتی ہے ایف سی آئی کے نام سے اور ہم ہیں سی اے پی ڈی محکمے کے لوگ تو ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے ایف سی آئی کے نام سے یہ بات ہے یہ 3 باتیں جو میں نے بتا دی میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں کوٹ ہوں مسائل جو ہمارے پاس درپیش ہیں بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں یہ ہے افسر آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ٹائم پاس کر کے کام کر کے نہیں جا رہا ہے کوئی یہاں سے جس کو بات کرنے آئے گی وہی بات کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے تو گلزار کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں کچھ ضروری چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں یونین سے میرے پاس ایک خاص پوائنٹ پڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک سسٹم ہے محکمے میں یہاں پہ مارچ ٹو مارچ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے باضابطہ طور حساب لیا جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں رہا ہے اس کے بعد کون سی بلا آ جاتی ہے جو اور حساب مانگتی ہے اور ہمارا ملازم اتنا پریشان ہے وہ مہینے میں وہ ڈیوٹی کرے گا یا حساب دینے جائے گا ایجنسی کے پاس حساب تو ہوتا ہی ہے حساب دینے سے کون انکار کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے جب حساب ہو جاتا ہے اس کے بعد کون سی پٹی یہ کھل جاتی ہے
मैं ये चाहता हूँ आज यूनियन के सामने, आज अच्छी बात है, खुशकिस्मती बात है, आज हमारे सदर रियासत यहाँ पे हैं, हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ पे हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, कुयम साहब हैं, फिरोज साहब हैं। ठीक है, अगर मुझे महीने का 2000 क्विंटल दिया जाता है, जब मैं 2000 क्विंटल का वो एनडीसी ले जाता हूँ, तो उसके बाद मेरा काम क्या है हो जाता है। तो मेरा स्टाफ यहाँ बेचैन है, मुझे करार यहाँ नहीं है। अगर मुझे स्टेट रियासत के वो अपने सदर साहब इस काम में मदद नहीं कर रहे तो मैं बहुत काफी हूँ यहाँ कोपाड़ा के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नर साहब को ही कह दूं, बात क्या है, शाम को आप मुझे साथ देते हो और सवेरे लेते हो, फिर दूसरे दिन कौन बलाई आती है आपको। तो ये खास बात है मेरी तरफ से कि यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए किसी भी एजेंसी की आफ्टर अकाउंटेबिलिटी। जब अकाउंट क्लियर होता है उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं पूछना चाहिए। हाँ पूछ सकता है मुझे, इस वक्त मैं काम पर हूँ, हाँ देख लो अगर मेरा कोई काम गलत है वो क्लियर हो जाए। तो एक बात यह है मेरी जबरदस्त सीपीडी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट में करूंगा बात, एज ए एफसीआई एम्प्लॉय नहीं कर सकता हूं मैं बात, क्या मैं हूं ही नहीं। हाँ देखिए सब्सिडी का जो मसला है वहां से आता है, अगर आता भी है मुझे मालूम नहीं, लेने वाले हम हैं, हम देख के लेते हैं, हम सब्सिडी नहीं लेंगे उनसे, ना लेते हैं, ना ही हमें कहीं आउटलेट से कहीं कंप्लेंट आई आज तक। तो ये एक बहरान बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, तो इसको मैं रिजेक्ट है, इसमें मैं हूं नहीं, मेरा कोई स्टाफ इसमें है ही नहीं। वो एक लेन देन है एफसीआई वालों के और ड्राइवरों के बीच में। वो ड्राइवर जो बाहर से आते हैं एफसीआई वालों के पास जाते हैं, हमारे पास उनका कोई लेन देन नहीं है। वो क्या दंदर देते हैं क्या लेते हैं तो मुझे क्या नहीं, आप बता सकते हैं ना, उस पर बात तो कर सकते हैं। तो आपकी एडमिशन जब हमारे ऊपर आते हैं खामा क्या तो उनके ऊपर नहीं जा सकती है, पुलिस किस लिए बैठी है फिर, तो उनको देख लें, ये होता है वहां पे, हम भी देखते हैं क्यों नहीं होता है ये सब कुछ। कहेंगे लेकिन एज ए प्रेसिडेंट आपसे जानना चाहते हैं। एज ए प्रेसिडेंट मैं इसके खिलाफ हूँ, अच्छी बात नहीं है, हम बंद करना चाहिए। मेरे प्रेसिडेंट आए हैं यहाँ पे, आज सुबह ही सदर साहब आए हैं और पूरा कोर ग्रुप लेकर आए हैं, इनकी टीम है इसके साथ और इसी के खिलाफ आए हैं कि ये दंदरी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्या आप नहीं समझ रहे ये बात? जी आप आपसे ही जानना चाहेंगे, मेरे से यही जान लो, फिर उनको एफसीआई वाले के खिलाफ ये कर लिया, आप वायरल कर लो वीडियो, दिखा दिए दुनिया को, दिखा दो पूरी कश्मीर को क्या हो रहा है लोगों के साथ, और हमें क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। मेरा प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं, पूरी टीम आई है, इसलिए कि यहाँ पे साफ और शफाफ निजाम होना चाहिए, किसी को सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, कोई दंदरी नहीं होनी चाहिए। यह हमारे प्रेसिडेंट का पूरा ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन वही है हमारी, और हम उसमें नहीं जाएंगे। ये हमारी यहाँ डिपार्टमेंट ऐसे नहीं बैठता है, एक डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर एक कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, अगर गवर्नमेंट नहीं होती है तो एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर स्टाफ और जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख लेती है कि मार्च से मार्च तक हमने इतना दे दिया है, इतने का हिसाब ले लेंगे और देते भी हैं। अगर वो हमें कहीं भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, कहीं इससे पूरा नहीं दे दिया, वो हमें पूछ सकते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च हो सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो हमारा करियर इसीलिए तो आज हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे हैं मौजूद, उनकी क़यादत में बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई एजेंसी हमारे सामने आती है तो हमारा रुख बहुत मुख्तलिफ होगा। मैं आज कह देता हूँ अपनी क़यादत से कि हमारा रुख थोड़ा सा टेढ़ा होगा, फिर एजेंसी को हम वार्निंग देते हैं कि हमारे ऊपर मर्ज की बात कभी ना आएगा। हाँ हर जगह पे क्या हालात है आपके? बहुत अच्छे, बहुत आला। आप पहले क्वेश्चन हमारा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, आप जो मतलब 549 स्टोर है आपके पास, सब जगह पे आप जाते हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह से आप मुतमईन है अपने डिपार्टमेंट? क्यों नहीं मुतमईन है, मेरा स्टोर कीपर 10 से 4 तक, वैसे भी 10 से 2 तक होगा, लेकिन यहाँ पे गाँव में 10 से 4 तक, और 6 बजे शाम के वो किसी को चावल देता, क्या कोई गलती कर रहा है? वो कल से नहीं देगा। वो मैं आज कर रहा हूँ कैद के सामने एजार एक्सपोज कर रहा हूँ इस बात को। मेरे स्टोर 3 बजे से बाद ड्यूटी नहीं जाएगा। उनको वेलकम करता हूँ। अगर लोगों को कहीं पे हमारे ऊपर कोई शिकायत हो वो डायरेक्ट हमारे पास आकर कर ले, हमारे स्टोर के पास जाकर कर ले। तो वैसे आज तक ऐसा कोई कभी नहीं हुआ, ना होगा, ना हम ऐसा होने देंगे, हम मौका ही नहीं देंगे। आपने आज मीटिंग की और क्या नहीं, मतलब जितने भी आप, अगर मैं आपको इस बात पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, ये क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आए यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ तो हैं ही हैं इनके साथ, ये चाहें तो पब्लिक भी होगी। सीपीडी यूनियन वो है जिन्होंने पब्लिक के लिए आज तक अपनी जान को हथेली पर रख के काम किया है। हम चाहे तो पब्लिक को भी साथ लेकर प्रतापगढ़ में पहुँचाएंगे। यहाँ पे हमारा जो काम कर रहे हैं, हम उनको कोई गलत बिल नहीं निकालने देंगे। ये हमारा मन है, इस पर हमारा ईमान है। हम अगर वो ट्रांसफर कोई गाड़ी करते हैं, हम उसको ट्रांसफर लिखेंगे, हम उसको इसमें कोई दूसरी किस्म की बिल नहीं निकालने देंगे। ये हमारे प्रेसिडेंट का ऑर्डर है ऊपर से। ये बात आप उनसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें ऊपर जाएगा वही करेंगे हम। और करेंगे क्या, वैसे ही करना है, करते भी हैं।
करते भी। अच्छा सर, आज आप लोगों को मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आने वाली ईद है आगे, मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल। जैसे कि अभी अफवाहबाजी चल रही थी, राशन करो, वो सब करो, ऑल दैट थिंग्स आपने देखा होगा, सर्कुलेट हुआ था, उस बारे में आप क्या मानते हैं? उस बारे में क्या है, राशन वो कहते हैं डंप करो, घरों में करो, हम घरों में क्यों करेंगे, हमारे पास डंप ही डंप है, जब चाहे उनको तो ले जाए। ये ना आज आप मैसेज दे दीजिए। नहीं वो मैं नहीं, देखो मैं उससे इत्फाक नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कुपवारा के लोगों के लिए आज आप मैसेज दे दीजिए। कुपवारा के लोगों के लिए यहाँ राशन पूरी डंप है, जब चाहे वो ले सकते हैं, हम किसी को राशन के लिए नहीं देंगे। आने वाली ईद के लिए भी, ईद के लिए भी राशन बहुत पूरा कोटा है। नहीं, हम वो राशन की बात नहीं है, जैसे कि मार्केट में जी जी वगैरह मिलते हैं, जी वो जी, सब उनकी रेट ज्यादा होती है, उस पे आज एक मैसेज दे दीजिए। देखिए अवेलेबिलिटी है और एज पर रेट्स वो होता है, और जो कुछ भी होगा सब अवेलेबल है। रहीम, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारी इस मीटिंग में आए और हमारा मौका दिया कि हम अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखें और हमारी आवाज़ रियासती सरकार तक पहुँच जाए। असल मसला ये है कि हमारा जो 19 अगस्त का एहतजाजी प्रोग्राम है, प्रताप पार्क से लेके सेक्रेटरी डेरा जो हमने प्रोग्राम किया है, असल ये बात है कि फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट एक तहरीक साज हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है, जिसने हमेशा तो हम जब से इस महकमे का वजूद आया है 1931 से लेके आज तक, इसने हमेशा ईमानदारी, मेहनत, लगन से रियासती आवाम की खिदमत की है। और ये महकमा भी इसीलिए बना था कि ये रियासत के जो लोग हैं, खुसूसन वादी कश्मीर के लोग हैं, इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, और इस महकमे की बुनियाद डाली गई फूड कंट्रोल के नाम से, और आहिस्ता आहिस्ता इस डिपार्टमेंट का नाम फूड सप्लाई शादी स्टोर के नाम से मशहूर हुआ। आज इसमें जो आज की बात मैं कहूँगा कि 7 मार्च 2018 में हमारी एक आला सतही मीटिंग जम्मू सेक्रेटरीट में हुई, जब PDP और BJP की सरकार थी, और उसमें हमने सरकार के सामने मुलाजमीन के मसाइल रखे थे और इन मसाइलों को हल करने पे हमने जोर दिया था। तो सरकार ने उन जो हमारे मसाइल थे, बहुत सारे मसाइल को उसूली तौर पे मान लिया था और कहा था कि ये जायज़ मसाइल है, इन्हें हम हल करेंगे। और बदकिस्मत तो हमारी ये रही कि वो सरकार ज़्यादा देर न चल सकी, और वो जो हमारे मामला थे उनमें चंद एक तो हल हुए, लेकिन बाकी तकरीबन 19% मामला अभी ऐसे ही है। बहुत अरसा गुजर गया, वक्त सिर्फ जो हमारे पास हमारा टाइम जो है उसको किल करने की कोशिश की जा रही, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। हमारे जितने भी मसाइल हैं वो इसी तरह हाल तलब है। हमारा मानना है कि हमारा जो महकमा है उसको रिऑर्गनाइज किया जाए, एक जो नए सिरे से उसको मुनज़्ज़म किया जाए जदीद आज के वक्त के हिसाब से। इसी तरह हमारे महकमे में 2002 में फेयर प्राइस शॉप लिखे पड़े डीलर जो लगे, हम कहते हैं कि उन्हें अवलीन फुर्सत में महकमे में निज़ाम कर दिया जाए। और जो मीटिंग में 7 मार्च 2018 को फैसला हुआ था कि फेयर प्राइस शॉप डीलरों को रेगुलर खुराक के तौर पर महकमे में निज़ाम किया जाए, उस ऑर्डर को जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह हमने हमारे महकमे में जो मजदूर है जो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं हमारे महकमे में, हमने उन पर जोर दिया था सरकार पे कि उन्हें SRO 520 पे लगाया जाए। तो हम इस बात के लिए सरकार के रोजगार को क्यों छीनते हैं? मुझे लगता है कि कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उस पर अमल नीचे नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमने सरकार पे लिखा, हमने अपने ड्यूकॉम साहब को भी लिखा और आज यहाँ भी आए। हमारा ये मानना है और हम ये करते भी है कि हमारा स्टाफ FCI से साफ शफाफ चावल लेगा, सेग्रीगेशन करके लेगा, पूरा वेट करके लेगा और किसी भी किस्म की मिलीभगत हम किसी को करने नहीं देंगे। और हमारा यही ये है कि FCI के जो भी बड़े बड़े अफसर हैं या इनके जो ये लोग हैं उनको चाहिए कि वो इस मसले को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करें, वरना ये एक आंधी बन जाएगी। जब किसी गरीब से उसका रोजगार छीना जा रहा है वो सड़कों पे निकल जाता है। जब सड़कों पे देखते हैं तो इनकलाब आते हैं, आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े इनकलाब हैं इन्हीं लोगों ने लाया। मुझे उम्मीद है कि ये महकमा FCI के इस सिलसिले में इन तमाम नाइंसों FCI की मनमानियों के खिलाफ और 7 मार्च 2018 को जो मसले हमारे हुए उसको न हल करने के खिलाफ हमने 19 अगस्त को एक प्रोग्राम रखा है। प्रताप पार्क से सेक्रेटरीट तक हम जाएंगे, हम अपने बातों को सरकार के सामने रखेंगे। अगर उस एजिटेशन से भी उस एहतजाज से भी हमारा मसला हल नहीं होगा तो आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक हम काम करेंगे। तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात देखिए कि कहीं भी स्टेट एक्सचेकर का लॉस नहीं होना चाहिए। और जो बात हमारे गवर्नर